Hi guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Now we will start the current affair of 22nd December. Question number first. Smriti Mandhana recently became the first Indian woman to achieve which milestone in women's T20 international cricket? स्मृति मंदाना हाल ही में महिलाओं की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा मील का पत्थर हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? Option A, 3000 T201 runs. Option B, 4000 T201 runs. Option C, 5000 T201 runs. या Option D, 100 T201 matches. Our right answer is option number B, 4000 T201 runs. Smriti Mandhana crossed 4,000 runs in women's T20 international during a match against Sri Lanka. She is first Indian woman and only the second woman globally to reach this milestone, reflecting her consistency and longevity in the sport. स्मृति मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में महिलाओं की टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 4,000 रन पूरे किए और वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. The discovery of a cube-shaped human skull in Mexico is significant because it provides evidence of which ancient culture practice. मेक्सिको में खोजा गया घन आकार का मानव खोपड़ी प्राचीन सांस्कृतिक अभ्यास के किस प्रकार का प्रमाण प्रदान करता है? Options are Option A, ritual human sacrifices. Option B, intentional cranial deformation. Option C, genetic skull mutilation. Option D, post-burial modification. Our right answer is option number B, intentional cranial deformation. The cube-like shape of the skull was deliberately created during early childhood using board and bandages. This intentional cranial deformation reflects the social identity, ritual beliefs, and the cultural practice in ancient Mesoamerican societies. घन जैसी खोपड़ी को बचपन में बोर्ड और पट्टियों से बांधकर जानबूझकर बनाया गया था और यह प्राचीन मेसोअमेरिकन समाजों में सामाजिक पहचान, अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The fertilizer project recently unveiled by the Prime Minister in the Assam aims to commission by 2030 and will produce which product? असम में प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में उद्घाटन किए गए उर्वरक परियोजना का लक्ष्य है 2030 तक किस उत्पाद के लिए उत्पादन करना है? ऑप्शन ए, फॉस्फेट फर्टिलाइजर. ऑप्शन बी, पोटास फर्टिलाइजर. ऑप्शन सी, अमोनिया यूरिया. या ऑप्शन डी, बायो फर्टिलाइजर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया यूरिया. The Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Limited will establish the modern ammonia urea plant at Namrup. कहाँ पर है ये प्लांट? नामरूप में है, आप ध्यान रखेंगे. Namrup in Assam with a annual production capacity 20.7 lakh metric ton. The project aims to boost domestic fertilizer production and reduce import dependence by 2030. असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड, जिसे AVFCCL कह रहे हैं, नामरूप में आधुनिक अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करेगा और जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता जो है वो 12.7 लाख मीट्रिक टन रहेगी और यह परियोजना घरेलू उर्वरक उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The Indian Post and Telecommunication Account and Finance Services (IP and TAFS) celebrated its
51st foundational year in 2025 as which day? भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा आईटी एंड टीएएफएस ने 2025 में अपनी 51वीं वर्षगांठ किस दिन के रूप में मनाई है? ऑप्शन ए संचार वित्त दिवस, ऑप्शन बी संचार वित्त लेखा दिवस, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन फाइनेंस डे, ऑप्शन डी पोस्टल एंड टेलीकॉम अकाउंट डे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संचार वित्त लेखा दिवस. IP and TAF has celebrated its 51st foundational year as Sanchar with Lekha Divas, highlighting its role in financial governance for India's telecommunication and postal sectors. The celebration included the Communication Finance Summit 2025, focusing on the revenue assurance, policy supports, and digital initiatives. आईपी एंड टीएएफएस ने 51वीं स्थापना वर्षगांठ संचार वित्त लेखा दिवस के रूप में मनाई है और इस अवसर पर कम्युनिकेशन फाइनेंस समिट 2025 आयोजित की गई है, जिसमें राजस्व आश्वासन, नीति समर्थन और डिजिटल पहल पर चर्चा की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Why is the exoplanet PSR J23222650b discovered by the James Webb Space Telescope considered unusual? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया उपग्रह PSR JS23222650b असामान्य क्यों माना जाता है या क्यों माना है? Our options are given below. Option number A, it has a liquid water on its surface. Option number B, its orbit is a millisecond pulsar and has a lemon-like shape. Option number C, it is the smallest planet ever discovered. Option number D, it has an Earth-like atmosphere. रीजन क्या है यहाँ पर? क्या लिक्विड वाटर जो इसका सरफेस है वो लिक्विड वाटर है, या ऑप्शन बी जो है आपका ऑर्बिट मिलीसेकंड पल्सर में घूम जाती है और इट हैज अ लेमन स्ट्रक्चर है इसका, या ऑप्शन नंबर सी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, या फिर या अर्थ लाइक का एटमॉस्फेयर को कैरी करता है. हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इट्स ऑर्बिट अ मिलीसेकंड पल्सर एंड हैज अ लेमन लाइक शेप्स. PSR J23222650 orbit is a millisecond pulsar in a very close and hostile orbit. Intense tidal force and extreme temperature differences stretch the planet into a lemon-like shape, making it unlike typical spherical planet. PSR J23222650b एक बहुत ही नजदीकी और प्रतिकूल कक्षा में मिलीसेकंड पल्सर के चारों ओर परिक्रमा करता है. तीव्र ज्वारीय बल और अत्यधिक तापमान ग्रह को नींबू जैसे आकार में खींच देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The first field training exercise FTX conducted by Quad partners in December 2025 was held on the sidelines of which humanitarian mission? दिसंबर 2025 में क्वाड देशों द्वारा पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX किस मानवीय मिशन के तहत आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन सी एंजल्स, ऑप्शन बी ऑपरेशन पैसिफिक रीच, ऑप्शन सी ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप, ऑप्शन डी ऑपरेशन समुद्र सेतु. Our right answer is option number C, ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप. द क्वाड पार्टनर्स, अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्वाड पार्टनर्स कौन कौन से हैं. तो क्वाड पार्टनर्स कितने हैं? 4 हैं. कौन कौन से हैं? इंडिया नंबर 1 पे आता है आपका, इंडिया.
नंबर 2 पे आता है आपका यूएसए। नंबर 3 पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 4 पे आता है आपका जापान। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि हमारे क्वाड कंट्रीज में क्या क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो 4 कंट्री हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी, Quad partners India, USA, Australia, and Japan conducted the first FTX alongside Operation Christmas Drop at Anderson Air Force Base, Guam. The exercise focused on enhancing logistic interoperability and disaster response under the Indo-Pacific Logistic Network (IPLN). क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के दौरान अपना पहला एफटीएक्स आयोजित किया। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क आईपीएलएन के तहत आपदा प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक सहयोग को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। At UEF Trade Summit 2025 held in Chennai, the United Economic Forum (UEF) signed MOUs with the which in organization to promote the UN Sustainable Development Goals. 2025 में चेन्नई में आयोजित यूईएफ ट्रेड समिट में यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम यूईएफ ने किस संगठन के साथ एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूएनएसडीसी, ऑप्शन सी यूएनडीपी या ऑप्शन डी डब्ल्यूएचओ। Our right answer is option number B, UNSDC. UEF signed 10 MOUs with the United Nations Sustainable Development Council. इसका फुल फॉर्म है ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल during the Chennai summit, and the agreement aims to advance the 17 UN Sustainable Development Goals uh, uh, across educational institutions associated with UEF and including community-run colleges and schools. यूईएफ ने यूएनएसडीसी के साथ 10 एमयूज हस्ताक्षर जो हैं वो साइन किए हैं और हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य जो है यूईएफ से जुड़े शैक्षणिक संस्थान ने जो 17 आपके यूएन ने सस्टेनेबल गोल्स दिए हैं उसको लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 रिप्लेस एंड रिफॉर्म विच अर्लियर रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 ने किस पूर्व ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को प्रतिस्थापित और सुधार किया है? ऑप्शन ए इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन सी मनरेगा या ऑप्शन डी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मनरेगा। और मनरेगा आई कब थी? ये आई थी भैया आपकी, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। और यहाँ पर जो वर्किंग डेज थे तो 100 डेज थे। अब जो ये आपकी विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट है जो सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए है, यहाँ पर जो डेज की है वो बढ़ा दिए गए हैं, 100 से 125 कर दिए गए हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की फुल फॉर्म है और यही आपका आंसर है। द VBGRAM-G एक्ट, जिसे VG राम जी एक्ट 2025 overhauls मनरेगा by increasing guaranteed wages employment from 100 to 125 days per household and strengthening
administrative capacity, improving transparency, linking employment to infrastructure and climate resilience, and embedded digital governance and align with the long-term Viksit Bharat 2047 vision. जो BBGRM RAM जी एक्ट 2025 मनरेगा का व्यापक सुधार है और इसमें वार्षिक रोजगार की जो गारंटी है वो 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। प्रशासनिक क्षमता और पारदर्शिता मजबूत कर इसमें की गई है और रोजगार को अवसंरचना और डिजिटल निगरानी के साथ जोड़ा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Tamil Nadu recently launched conservation initiative in Kaveri Delta primarily aims to protect which species? कावेरी डेल्टा में हाल ही में शुरू की गई तमिलनाडु संरक्षण पहल का मुख्य उद्देश्य किस प्रजाति की सुरक्षा करना है? ऑप्शन ए इंडियन पेंगोलिन, ऑप्शन बी घड़ियाल, ऑप्शन सी स्मूथ कोटेड ऊटर्स या ऑप्शन डी फिशिंग कैट। Our correct answer is option number C, smooth coated ooters. The initiative focuses on conserving the smooth-coated otters, Asia's largest otter species, which is vulnerable and protected under Schedule 1 list के अंदर आते हैं ये of the Wildlife Protection Act 1972. The program addresses threat like habitat loss and human-wildlife conflict in the Kaveri Delta. ये जो पहल है आपकी जो तमिलनाडु ने लॉन्च की है कंजर्वेशन का कावेरी डेल्टा में जो ये स्मूथ कोटेड ऊटर्स हैं इनको बचाने के लिए और जो ये आपके किस एक्ट के तहत तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये स्पीसीज 1 में आते हैं। शेड्यूल 1 के अंदर ये स्पीसीज पाई जाती है। तो पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मूथ कोटेड ऊटर्स एशिया की सबसे बड़ी ऊटर प्रजाति मानी जाती है जिसे 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है और इसकी रक्षा करना है और इसी से रिलेटेड ये कावेरी डेल्टा के अंदर तमिलनाडु संरक्षण पहल लागू की गई है जिसका यह कार्यक्रम जो है कावेरी डेल्टा में आवास हानि और मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The second WHO Global Summit on Traditional Medicine December 2025 was held in New Delhi under the which theme? Second WHO Global Summit on Traditional Medicine December 2025 की थीम क्या थी? और ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर मॉडर्न हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रेटिंग डिजिटल हेल्थ सिस्टम। Our right answer is option number C, restoring balance, the science and the practice of health and well-beings. The summit held from 17 to 19 December 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi, was organized by WHO and the Ministry of Ayush. It focuses on strengthening traditional medicine system worldwide under the theme Restoring Balance, the Science and the Practice of Health and Well-being. यह समिट जो है 17 से 19 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित की गई थी भारत मंडपम के अंतर्गत और इसे WHO और आयुष मंत्रालय ने आयोजित किया था और यह पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Who won the IGU 124th Amateur Golf Championship of India held in टॉलीगुंगे क्लब कोलकाता के अंदर ये स्टार्ट किया गया। IGU 124वीं अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप कोलकाता में आयोजित की गई है। किसने जीती है?
ऑप्शन ए हरमन सचदेवा, ऑप्शन बी सिमरनजीत सिंह, या ऑप्शन सी सुखमान सिंह, या ऑप्शन डी शुभंकर शर्मा। Our right answer is option number C, सुखमान सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं भैया? नोएडा के हैं। नोएडा गोल्फर हैं ये सुखमान सिंह। डिफीटेड हरमान सचदेवा को इन्होंने हरा दिया है इन द 36th whole match play final to win the IGU 124th Amateur Golf Championship. The tournament is organized by the Indian Golf Union and is the world longest running amateur match play golf event. नोएडा के गोल्फर सुखमान सिंह ने हरमान सचदेवा को हराकर आईजीयू 124वीं अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है और यह टूर्नामेंट भारतीय गोल्फ संघ द्वारा आयोजित किया गया था और विश्व स्तर का सबसे पुराना अमेच्योर मैच प्ले इवेंट है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे is observed every year on which date? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? Our option are given below. Option A is 10th December, option B is 18th December, option C is 20 December, option D is 24 December. Our right answer is option number C, 20 December. Proclaimed by the UN General Assembly in 2005, International Human Solidarity Day highlight the importance of global solidarity and in addressing challenges such as poverty, inequality and sustainable development. यह दिन जो है वो 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था और यह वैश्विक चुनौतियों जैसे कि आपकी कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, गरीबी हो गई, असमानता हो गई और सतत विकास में एकता को महत्व को उजागर करता है। व्हाट इज द रोल, इनका रोल क्या है हमारे ह्यूमन इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। इस दिवस को कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 25 to 2030, 20 2025 to 2030। द 7 निश्चय 3, 7 रिजॉल्व 3.0 के नाम से भी जाना जाता है इसे। aims to promote development with justice in Bihar, focusing on job creation, private investment, agriculture, education, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी ऑलराउंडर है उन सबको भी लिया गया है ड्यूरिंग 2025 to 2030। 7 निश्चय 3, 7 रिजोल्व 3.0 या 3.0 का उद्देश्य जो है वो बिहार में रोजगार सृजन, निजी निवेश, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक अवसंरचना के माध्यम से न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Which Indian team won NASA most inspirational award at International Space App Challenge 2025 for a satellite internet concept? The अंतरराष्ट्रीय स्पेस ऐप चैलेंज 2025 में भारत की किस टीम ने उपग्रह इंटरनेट अवधारणा के लिए नासा का मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए एस्ट्रो इनोवेटर्स, ऑप्शन बी स्पेसनेट इंडिया, ऑप्शन सी फोटोनिक्स ओडिसी या ऑप्शन डी डिजिटल ऑर्बिटर्स। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फोटोनिक्स ओडिसी। The Chennai-based team Photonics Odyssey proposed a sovereign phased array satellite internet system to expand broadband access in remote and understand regions of India, earning NASA's most inspirational award at the 2025 Space App Challenge.
चेन्नई की टीम फोटोनिक्स ओडिसी ने दूर दराज और अल्पसंपन्न क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच बढ़ाने के लिए फेज्ड एरे उपग्रह इंटरनेट प्रणाली का प्रस्ताव दिया और नासा का मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द लैंडमार्क्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के नाम से जिसे जाना जाता है concluded between the India and New Zealand in 2025 provides duty free market access on what percentage of India export to New Zealand? 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच निष्कर्षित एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के निर्यात पर कितने प्रतिशत तक शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 100%. Our right answer is option number D, 100%. The India and New Zealand FTA grant zero duty access on 100% of the India's export to New Zealand. India in returns and offered tariff liberation of 70% of the New Zealand tariff lines, and the agreement also covers services, investment, student work visas, agriculture cooperation, and some strengthen trade under the Viksit Bharat 2047 विजन। भारत न्यूजीलैंड एफटीए भारत के सभी निर्यात 100% पर शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करता है और भारत ने न्यूजीलैंड की 70% टैरिफ लाइनों पर छूट दी है। भारत ने 70% दी है और न्यूजीलैंड 100% दे रहा है। समझौते में सेवाएं, निवेश, छात्र, कामकाज वीजा और कृषि सहयोग और विकसित भारत 2047 की दृष्टि के तहत व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। चलिए भाई, ये है आज की हमारी सारी करंट अफेयर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको हर बार मिलता है, ये आपकी क्विक रिकैप है। आप इसे एक बार में 5 मिनट लगा के रिकैप कर लेंगे फटाफट से। आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड है एंड आपको हिंदी में भी प्रोवाइड है। तो आज इसको आप रिकैप करेंगे ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहे। Thank you so much for watching this video, and if you like this video, so you if you like this video, then you will subscribe the channel and like also. Thank you so much.